Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for problems from weekly contest 277. Okay, we will solve all the problems first, second, third, fourth. Okay, so in this video we will see editorial for first, second and third problem because these all three problems are very easy. Okay, so let's just see. Count elements with strictly smaller and greater elements. So we have a array and return the number of elements that have both a strictly smaller and a strictly greater element appear in nums. Okay, so एक example देता हूँ. Suppose ये मेरी एक array है, okay, and 11 है अगर. So if I have to consider 11, okay, I want to consider 11. 11 से एक छोटा strictly smaller and strictly greater element present होना चाहिए array में. So for 11 we have a 2 that is strictly smaller than 11. And for 11 we have a 15 that is strictly greater. Okay, so we can count 11 as an element and we have to return total number of elements in this array. Okay, so now let's just check we can count 7 or not. For 7 we have a 2 and we have a 15, so we can count 7 also. For 2 we don't have a strictly smaller element, so we cannot count 2. And for 15 we don't have a strictly greater element. Okay, so we cannot count 15 also. So now let's just discuss approach for this problem. One way, if you see the constraints of the problem, we have total length of array up to 100 only. Okay, so what you can do is you can simply, for every element, you can check that whether you can consider that element or not. Okay, how? You can simply take one element at ith index, okay, and iterate in complete array and check whether you have a smaller element and greater element from that element or not. If you have, consider that element and count increase your counter of answer by 1, otherwise don't consider it. Okay, so this was an easy approach. What else you can do is अगर मैं समझाऊं तो तुम और क्या कर सकते हो, तुम exactly देखो क्या कि तुम्हें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए. You need only those elements. Suppose this is your array a1, a2, a3, a4, a5. okay, if I tell you that ये जो array है ये एक sorted order में है, ओके, सॉर्टेड ऑर्डर में है एंड इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिक हैं. ओके, ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिक. सो व्हाट यू कैन सिंपली से इज दैट इफ ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिक एंड दिस अरे इज इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो तुम क्या कह सकते हो कि a2 के जो ये वाला एलिमेंट होगा वो इससे जस्ट छोटा होगा. दैट मीन्स a2 इज ग्रेटर देन a1 एंड a2 इज लेस देन a3. दैट्स वाई यू कैन से दैट यू कैन कंसीडर दिस एलिमेंट. You can also consider this element because इसके left और इसके right में भी एक element है, और you can also consider this element, इसके left और इसके right में भी एक element है. Okay, you can not consider these two elements because इससे एक छोटा element नहीं present and इससे एक बड़ा element नहीं present. Okay, so in this way you can go for another approach to solve this question. अगर constraints बड़े होते उस केस में, ठीक है, करते क्या तुम simply तुम पहले पूरी एरे को एक यूनिक एलिमेंट एरे बनाते, ठीक है, उसके बाद उसको सॉर्टेड फॉर्म में रखते. सॉर्टेड फॉर्म में रखने के बाद तुम्हारा जो यूनिक एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स -2, ये तुम्हारे हो जाते कौन से एलिमेंट्स जो तुम्हें कंसीडर करने. प्लस अब तुम्हारी दूसरी चीज तुम्हें क्या देखनी थी इस क्वेश्चन में कि मान लो तुमने जो यूनिक एलिमेंट्स बनाए हैं वो बनाए हैं 2, 3, 5, 6. तो तुम आंसर में कंसीडर कर लोगे 3 और 5 एंड तुम बोल लोगे आंसर इज 2. बट नो, वाई? क्योंकि जो तुम्हारी मेन एरे थी, मेन एरे जो थी तुम्हारी, उसमें हो सकता है कि जब तुमने यूनिक एलिमेंट्स किए हों, ठीक है, तो तुमने 3 को सिंगल टाइम काउंट किया, बट यहाँ पे तुम्हें 3 को डबल टाइम काउंट करना है. ओके, सो व्हाट यू कैन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम सिंपली यहां से यहां तक 1 से n-1 तक इटरेट करना है इस वेक्टर में एंड इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अपने आंसर में ऐड करना. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा. मैं एक बार मेथड भी दिखा देता हूँ कैसे करना है ये वाला अप्रोच. ठीक है, एक सेट ले लो और एक मैप ले लो. मैप में हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, सेट में हम यूनिक बनाएंगे. तो मैंने सेट में इंसर्ट कर दिया और सारे एलिमेंट्स की मैप में फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी. आफ्टर दैट आई पुश्ड ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट इन द वेक्टर एंड मैंने एक आंसर ले लिया और मैंने 1 से उसी वेक्टर में इटरेट किया अप टू n-1 एंड आंसर में सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी पुश कर दी. ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ लेट्स जस्ट सी सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल द क्वेश्चंस इजी थे इसलिए मैंने एक ही वीडियो में बना दिए. ठीक है, नाउ रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन.
you are given a zero index integer number of array even length. Okay, length of this array is even, consisting of an equal number of positive and negative integers. Okay, तो उसमें equal number of positive and negative integers है, ये question है तुम्हारा. Okay, you should rearrange the elements of array such that every consecutive pair of integer have opposite sign, such that देखो यहाँ पे output में plus minus plus minus plus minus. Okay, since equal number of positive and negative है, तो you can always do that. For all integers with the same sign, the order in which they were present in array is preserved. Okay, so second line का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो है 3 1 2, ओके, तो जो तुम्हारा आउटपुट है उसमें भी इसी ऑर्डर में नंबर्स आने चाहिए, दैट इज 3 1 and 2. ओके, एंड द रीअरेंज्ड एरे बिगिंस विद अ पॉजिटिव इंटीजर. तो जो तुम्हारा आउटपुट है उसमें पहला जो नंबर है वो प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव, प्लस माइनस होना चाहिए, ना कि माइनस प्लस माइनस प्लस. ओके, इजी क्वेश्चन है. whenever you are told in the question to preserve the order, okay, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाए that you have to preserve the order of elements, okay, this simply means कि कोई भी एलिमेंट है तुम्हारा, अगर मान लो 3 1 2 3 5 6, तो तुम्हें आउटपुट में भी ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसी ऑर्डर में आने चाहिए, that is 3 1 2 3 5 6. okay, you can't reorder them and make 2 3 1 3 5 6. this is wrong. okay, you have to preserve the initial order of the elements. For doing so, what you can simply do is, always while making your output, always iterate from left to right. okay, जब तुम लेफ्ट टू राइट इटरेट करोगे तो एग्जैक्टली होगा क्या, तुम्हें सबसे पहले 3 मिलेगा एंड यू आर गोइंग टू यूज 3 इन द आउटपुट. 1 मिलेगा, 1 आउटपुट में यूज करो, 2 2 आउटपुट में यूज करो, 3 3 5 6. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन प्रिजर्व योर आउटपुट. और तुम लाइट से लेफ्ट भी इटरेट कर सकते हो, बस तुम अपना आउटपुट भी उसी ऑर्डर में बनाने लग जाना. ठीक है, तो ये तुम्हारी वे होती है किसी भी चीज़ को करने की. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. ओके, मोहल्ला बहुत चूतिया मोहल्ला है मेरा. ठीक है, तो दिस इज द वे. नाउ अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, इन ऑड पोजीशंस हमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स रखने हैं एंड इन इवन पोजीशंस हमें सारे नेगेटिव एलिमेंट्स रखने हैं. दिस इज द केस, ओनली केस यही है कि ऑड पोजीशंस में जैसे 0, लाइक यू कैन से फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फिफ्थ इंडेक्स में मुझे सारे पॉजिटिव रखने हैं. तो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज, आई कैन मेक अ काउंटर. मैं ऑड इंडेक्सेस को विजिट करूंगा एंड अपनी एरे में इटरेट करूंगा और उन सारी वैल्यूज को वहां पे प्लेस कर दूंगा जो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं. एंड सिंस आई हैव टू प्रिजर्व द ऑर्डर, आई विल इटरेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सिंपल सी चीज़ है. तो इफ़ आई शो यू, मैंने n में नंबर का साइज ले लिया, एरे का साइज, फिर मैंने एक वेक्टर बना लिया आंसर वेक्टर, जिसके मैंने सारे एलिमेंट्स इनिशियलाइज कर दिए 0 से. फिर मैंने एक पॉइंटर बना लिया j इज इक्वल टू 0 फॉर ऑड पोजीशन. एंड जब भी मुझे कोई, मैंने अपनी एरे में इटरेट किया, जब भी मुझे कोई एक पॉजिटिव नंबर मिला, मैंने उस इंडेक्स पे पॉजिटिव नंबर रख दिया, प्लेस कर दिया एंड j को +2 कर दिया, दैट इज नेक्स्ट ऑड इंडेक्स. अगेन आई डिड इट फॉर इवन इंडेक्सेस एंड जब भी मुझे एक नेगेटिव नंबर मिला, मैंने नेगेटिव नंबर उस इंडेक्स में प्लेस कर दिया. ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन सेकंड. नाउ लेट्स जस्ट सी थर्ड क्वेश्चन. ओके, ये तो फोर्थ क्वेश्चन है. लेट्स जस्ट सी थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, अ नंबर x is lonely when it appears only once and no adjacent number x plus 1 and x minus 1 appears in the array. okay, so this is the question. एक नंबर लोनली कब हो सकता है, जब उसकी फ्रिक्वेंसी इन कंप्लीट एरे 1 हो एंड x plus 1 and x minus 1 is not appearing in the array. कितना easy question है. return all lonely numbers in any order. okay, so suppose if you see this question 10 6 5 8, let's just see 10 is appearing only 1 in the array and 9 or 11 present है 9. it means this number is lonely. okay, 8 के लिए तुम्हारे पास 7 या 9 present है 9 and it is only appearing once, that's why lonely. 6 के लिए 5 present है. okay, so it can't be lonely number. 5 के लिए 6 present है, it can't be lonely number. okay, now this is the way. and nums का हम देख सकते हैं 10 raised 5 है, so we can do this question in n log n. okay, so let's just see the solution.
हम सिंपली क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे जिसमें हम अपने सारे एलिमेंट्स स्टोर करने वाले हैं। एंड हमें बेसिकली देखनी क्या क्या है, दैट इट्स फ्रिक्वेंसी इज 1 और नॉट, आफ्टर दैट x+1 और x-1 में से कोई भी प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एक मैप में फ्रिक्वेंसीज अपडेट कर लूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल सिंपली इटरेट इन कंप्लीट एरे एंड आई विल चेक इफ i+1 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 0 है एंड i-1 की फ्रिक्वेंसी 0 है एंड जो मेरा i है करेंट नंबर उसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, तो आई विल सिंपली पुश दैट element in the answer vector and I will simply return answer. So thank you guys for watching this video. If you have any doubt in these first 3 questions of weekly contest 277, you can ask me in comment section, okay? And for next question, that is maximum good people based on a statement, you can watch next video. Thank you guys for watching.